And can we Okay. wait for 2 more minutes? People are joining, so they'll not miss some important part. Please. Himanshi, drop a message in the group and we'll start after 2 minutes. Many people have been joined, so ma'am, you can start now. Okay, thank you. So, dear candidates, in last classes, we had discussed so many topics related to the supply chain management. And today we are going to discuss about the globalization and supply chain management. Whenever we are talking about the term globalization, so basically it refers to the free movement of goods. But where? Like free movement of goods or services or people across the world means here we are focusing to the whole world, to the world where we want to sell our goods or services. So in regard to the supply chain management, globalization basically refers to the process in which the business operate. आप किस process के through अपने goods को बना रहे हो? For example, अगर मैं एक iPhone बना रही हूँ, so on that moment मुझे बहुत सारे accessories चाहिए होंगे, tools चाहिए होंगे, उसका glass item, various things we are using. हो सकता है कुछ हम ताइवान से ले रहे हो, कुछ हम चाइना से ले रहे हो, कुछ हम हांगकांग से ले रहे हो. सो यहाँ पर हमारा ग्लोबलाइजेशन टर्म पूरी तरीके से इंक्लूड हो रहा है. वाई? बिकॉज हम अपने प्रोसेस में जहां से भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो सारी चीजें हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू एसोसिएट हो गई हैं. So, whenever we are talking about the term globalization, so we always remember it that it is nothing but it is a process in which a business operates ऑन एन इंटरनेशनल स्केल. जहां पर हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहां पर अब सपोज वी आर मेकिंग गुड्स इन इंडिया और हमें एक्सपोर्ट करना है यूएस, हमें एक्सपोर्ट करना है यूरोप. सो ऑन दैट मोमेंट हमारा ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड हो जाता है. क्यों? लॉजिस्टिक भी इन्वॉल्व हो रहा है, पैकेजिंग भी इन्वॉल्व हो रही है, कस्टमर का फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ने पसंद किया हमारे गुड्स को, नहीं पसंद किया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो whenever we are talking about global supply chain management, तो यहाँ पर सिर्फ एक aspect नहीं है, we have to look about every single aspect. Why? Because quality, customer, cost reduction, everything is concerned, everything is associated. So please change the slide. I told you earlier also that what is basically the supply chain. Supply chain is a chain जहां पे आपका रॉ मटेरियल से लेकर के आपने अपने कंज्यूमर को गुड भेज दिया, उसका फीडबैक भी जो होता है ना, वो पूरा आपकी चेन का पार्ट है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो हियर इट इज बेसिकली collectively raw material to finished product, everything, every important information, every important entity is involved in your supply chain
वट एवर द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, वट एवर द सर्विसेज यू आर गोइंग टू गिव, सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जब यहाँ पे हम उसको ग्लोबल लेवल पे स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सारे अपने बिजनेस प्रोसेस को, whatever we are executing, it is also associated with the international norms. ओके, सो यहाँ पर रिस्क मिटिगेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी हम समझेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ, ग्लोबल सप्लाई चेन, as I told you right now, that whenever we are doing any business or we are opting any business process to sell our good or services across the कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन हो जाता है। जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना की हेक्सोगनी इतनी स्ट्रांग है कि मोस्टली जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, दे वांट टू प्रोड्यूस देयर गुड चाइना में, कि हमारा गुड कोई भी हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका 24/7 वर्किंग कैपेबिलिटी, उनके यहाँ का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमें हमारे प्रोडक्ट को अप टू द मार्क प्रोड्यूस करके देंगे, एज वेल एज हम उसको जहां भी फर्दर आपको सेल करना है, यू कैन सेल इट इन अदर कंट्रीज। सो द थिंग इज दैट कि ग्लोबल सप्लाई चेन इज बेसिकली अ प्रोसेस that create and deliver product and services to the end customer, or you are making or you are supplying the raw material to a manufacturer to to produce a particular good। या तो आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे कि एक अपना फिनिश्ड गुड बना करके फिर अनदर कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारे, अगर हम फोर्ड का एग्जांपल लें जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी, तो वो अपना बॉडी कहीं से बनवा रहा है, इंजन कहीं बन रहा है, टायर्स कहीं बन रहे हैं, असेंबलिंग उसकी कहीं पर और हो रही है। तो बट ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, मींस वट एवर द सप्लाई यू वांट टू प्रोड्यूस टू मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट, और आप जो भी सप्लाई इधर उधर से ले रहे हो, अलग अलग कंट्रीज से ले रहे हो, तो वो सारी चीजें हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन से एसोसिएट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमको कहाँ से सोर्स करना पड़ेगा, जहां पे आपको कॉस्ट रिडक्शन पड़ रहा है, जहां पे आपको लेबर चीप पड़ रहा है, जहां पे आपका फिनिश्ड गुड रेडी हो जाएगा और आप कॉस्ट को सेव कर रहे हो। सो इन ग्लोबल सप्लाई चेन वी ऑल्सो like study these all aspects. Okay, next slide please. Next slide. Now, here is the example of Ford company where in map they are showing that where they are sourcing a particular product for their finished good. Okay, so you can see ki, where they are getting the gank body, where they are getting the Basildon, where they are getting the transmission part, engine components, where they are getting the casings, where they are getting the engine components. So the thing is that they are sourcing various raw material from different countries, और एक ऐसा पार्ट, एक ऐसी कंट्री है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। तो इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने में हमारा सप्लाई चेन sub like at all aspect, if we are suppose sourcing this engine components, okay, so obviously यहाँ पर supply chain management हमारा इतना strong होना चाहिए, इतना transparent होना चाहिए कि whatever you are sourcing from different countries वो आपके आपके बोर्ड पे अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आगे जो उसका प्रोसीजर होता है, जो वर्क इन प्रोसेस होता है, उसको पता चलता रहे कि हमारा रॉ मटेरियल कब आ चुका है, कब हम उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, कब वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। सो फोर्ड ऑलवेज ऑप्ट द सिग्मा अप्रोचेस ऑप्ट करते हैं हम, कि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, हम सारी चीजों को बहुत ही फास्ट मोड में एक्टिवेट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, these all are the driving forces for globalization: global market forces, technological forces, global cost forces, and political and economic forces. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे when we talk about the global market forces. So we all are knowing that suppose if we take the example of this डीप सीक चाइना बना रहा है, हमारा इंडिया भी कुछ बना रहा है, और कोई और कंट्री बना रहा है। तो यहाँ पर हम ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं कि कौन हमारा बेस्ट
इन्वेस्टिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कौन हमें सपोर्ट करेगा, जहां पर जाकर के हम अपना एफडीआई करें, जहां पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज अप टू द मार्क बनेंगी और फिर हम आगे फर्दर कंट्रीज में उसको डिलीवर कर सकें। ओके, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, दैट हाउ मच यू आर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड। इफ यू टॉक अबाउट कि अभी हम बात करें कि नाइजीरिया में जाकर के हम किसी अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहें, कुछ सोर्स करना चाहें, तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड नहीं हुए हैं जितना और कंट्रीज हो चुकी हैं। ग्लोबल कॉस्ट फोर्सेस की बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे लेबर भी आ जाता है, यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, यहाँ पर आपके इंफ्रा, लाइक नॉट ओनली वन थिंग इट, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी काउंट करती है, आपका आपके अदर एक्सपेंसेस भी काउंट करते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट पूरा पूरा एंटरटेन कर रही है कि भाई आइए आप एफडीआई करिए। अगर हम यूपी की बात करें, हमारे यहाँ बिजनेस समिट हो रहा है, क्यों? यूपी को हम बढ़ा रहे हैं, उस लेवल पे ले जा रहे हैं कि ग्लोबली नाउ वी आर इन, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव प्रोफेशनल पर्सन्स। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो। Political or economic forces means here, political means that how a government is supporting, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कितने एंटरप्रेन्योर्स, कितने स्टार्टअप्स, मींस सो मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, in detail about global market force. So, foreign, whenever we talk about the foreign countries, so वहां पर बहुत कंपटीशन होता है अपने लोकल मार्केट में। अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इन इंडिया वी आर यूजिंग यूट्यूब, वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप। भाई ये हमारे किसी बंदे ने नहीं बनाए हैं, मार्क्स जुकरबर्ग ने बनाए हैं और लोगों ने बनाया है। ओके, वी आर यूजिंग इट। सो वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, सो व्हाट दे डू, दे लुक द मार्केट जहाँ जो ओपन मार्केट हो, जहां पर कस्टमर्स हो, जहाँ पे यंग कस्टमर्स हो जो यूज करें। तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ जो बहुत ओपन है, जो बहुत ब्रॉड है, अभी आगे 10 साल तक तो रहने वाला है। सो यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक टिकटॉक बैन हो गया, कितना प्रॉब्लम हुई। इफ यू टॉक अबाउट कि अगर एक गेम था बच्चों का, वो भी बैन कर दिया गया था, तो बहुत इश्यूज क्रिएट हुए थे। हमने लोकल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो लोकल इतना चल नहीं पाया। सो व्हाट वी डिड, हमने अगेन चीजों को एग्जीक्यूट किया, जो हमारा चल रहा था हमने उसको ऑप्ट किया। सो whenever we are looking the market and like WTO also plays very important role in it, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। सो इंडिया इस टाइम पे एक बहुत अच्छा प्लेस है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर पीपल वांट टू सेल देयर थिंग, चाहे फिर वो एआई हो, चाहे वो आपका कोई गुड हो, या कोई भी आपका सर्विस रिलेटेड चीजें हो। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द फॉरेन डिमांड, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फॉरेन डिमांड ये शो करती है कि ग्रोथ के लेवल कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टॉकिंग कि हम इंडिया की बात करें, तो यहां पर डिमांड, अपनी कंट्री बहुत ज्यादा डिमांड में है। वाई? बिकॉज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। वी आर फोकसिंग ऑन मेड इन इंडिया, जिसको हम ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम अपने आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहे हैं कि उनको हम भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि भाई यू मेक द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिजायर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे एसोसिएट होगा? भाई ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद अब हम कितना और बढ़ सकते हैं, हमारे पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। सो ऑन दैट मोमेंट, उस एक्सपेंशन के लिए, उस कंजम्पशन के लिए, व्हाट वी डू, वी मेक द गुड्स, वी मेक द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंटरनेशनल कंज्यूमर, या हम ग्लोबल कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो हम उनकी नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग गुड्स को बना करके बेचना शुरू करते हैं। और उससे हमारा क्या होता है, उससे हम हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ट्रेड सरप्लस का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ओके,
अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो वो एक डिफेंसिव टूल की का भी काम करता है। क्यों? यहाँ पर मैंने एग्जांपल मेंशन किया है नेस्ले और केलॉग्स का। So at the international, you once you are showing your presence, then you are showing that we are enriched in quality norms. We are enriched in professional norms. हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं. Okay, as well as if we talk about other things, so we are गेटिंग अपडेटेड डे बाय डे. हम लोग डेली बेसिस पे अगर आप देखिए तो कोई ना कोई नई चीजों को ऑप्ट कर रहे हैं और अपना एक नया टूल, अपना एक नया प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होता है. ओके, सो अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट की बात करें तो जापान हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत रिच है, बहुत ही ज्यादा फोकास्टेड है. उसके पास जो अभी हमारे पास कुछ समय के बाद रिसोर्सेज आएंगे वो ऑलरेडी दे आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज. जर्मनी हमारा मशीन टूल्स रिलेटेड बहुत एनरिच है. दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग इन इट. If you talk about the US, so they are basically in utility vehicles, that how they can make new things in it. Next one, next slide please. So now once we talk about the technological forces, हम सब लोगों को पता है कि हम लोग nowadays we are so technological enriched. सो अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर रहे हैं, सो ऑन दैट मोमेंट आप बिजनेस साइकिल से आउट हो जाओगे. सो if we talk about the globalization thing, if we talk about the global level of supply chain management, why every time we are saying China, 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 China is very good in technology, China is very good in all aspect. So why? Because they are keep updating themselves, not only in like market thing, competition thing, they are also enriching themselves in the technological things. आप डीप सीक का एग्जांपल ले सकते हैं. मोस्टली नाउ पीपल आर स्विचिंग ऑन डीप सीक. व्हाई? बिकॉज और अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अच्छा आउटकम आ रहा है उसका, सो पीपल आर यूजिंग इट. कि भाई वाई पुराना वाला, वाई नॉट न्यू वाला. सो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे टेक कंपोनेंट. ओके, कौन सी कंट्री में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ऑप्ट करना चाह रही है. ओके, और कितना कितनी कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, एफडीआई कितना हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट रिलेटेड हो रहा है. इफ यू टॉक अबाउट आज के डिजिटल इंडिया की बात करें तो हम obviously we are using plastic money, we are using like electronic components at all aspect. So whenever we are talking about the diffusion of knowledge, वहां पर हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री के साथ हम रॉ मटेरियल लेने जा रहे हैं, जिस कंट्री के साथ हम अदर कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, क्या वो इतनी इनरिच है, क्या वो हमारे जो हम अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसमें हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट देगी. सो ऑन दैट मोमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज इम्पोर्टेंट. सो यहां पर अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, अदर नेशंस भी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यही चीज मार्केट में इन है. और अगर इनके साथ आप मीट आउट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, सो ऑन दैट मोमेंट आप क्वालिटी नॉर्म्स में पीछे रह जाओगे. आपका डिमांड और सप्लाई का जो साइकिल होता है वो भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा. सो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एनरिच करना पड़ेगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी की बात करें तो व्हाट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग, इनोवेशन कहाँ है? आप क्यों नया, क्या नया लेकर के आ रहे हो जो मार्केट में किसी और ने अभी नहीं बनाया है? आप कौन सा ऐसा आइडिया जनरेट करके लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आएगा, जिसको लोग तुरंत ऑप्ट करेंगे? सो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इज ऑप्टेड बाय मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा आईटी सेक्टर हो. अभी हम एआई की बात कर रहे हैं. एक टूल को हम यूज करना सीखते हैं कि हम देखते हैं कि 2 महीने के बाद कुछ और नया अपडेशन आ गया है. वाई? बिकॉज लाइक दोज ऑल पर्सन्स आर कीप इन्वॉल्विंग इन देम कि हम नया क्या लेकर के आए. नाउ वी आर यूज टू डू एलेक्सा, ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो. इसके आगे और भी हम बहुत कुछ, they are like generating, they are making the new things.
Why? Because this change, this environmental change, these new things, everything is important. और अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोप अप करते हुए चलते हो तो आपका सप्लाई चेन बहुत ही स्मूथली काम करता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ ग्लोबल कॉस्ट फोर्स की बात करें भाई, लेबर इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब कभी भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात करें, हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए, हमें प्रोफेशनल लोग भी चाहिए, हमें हमें लाइक लेबर टाइप लोग भी चाहिए. सो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है. अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यूएस में बना रहे हो तो वहां पे क्या कॉस्ट लग रही है, और अगर आप उसी को इंडिया से सोर्स करा रहे हो या चाइना से सोर्स करा रहे हो तो आपका कितना कॉस्ट लग रहा है. आप एस्टिमेट करते हैं, आप बेनिफिट्स देखते हैं. ओके, सो ऑन दैट मोमेंट आप डिसाइड करते हो कि हम कहाँ से सप्लायर से सप्लाई लेंगे, कहाँ पे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालेंगे, कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को असेंबल करा करके फिर मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे. व्हाई? बिकॉज जब आप हर स्टेप पे कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं, सो ऑन दैट मोमेंट वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट से एसोसिएट होती है. So low labor cost में we have to focus, we have to make our estimate in such a way कि हम कहाँ से क्या सोर्स करेंगे, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होगा कि अल्टीमेटली वो हमारे कॉस्ट रिडक्शन होकर के हमारे प्रॉफिट में क्लब हो सके. सब दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं जिस भी सप्लायर के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, जहां से आप अपने रॉ मटेरियल को मंगा रहे हो, जहां से आप अपने अदर सोर्सेस को कैरी कर रहे हो, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां के सप्लायर. सपोज अगर हम बात करें कि हमने किसी रूरल एरिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को सेट कर दिया जहां पे सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है, तो क्या हम अपने बायर की नीड को टाइमली डिलीवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई जब ये एस्टिमेशन आपका हो रहा होता है वहां पर दे चेक इट आउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि भाई सप्लायर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग रन में काम करने वाले हैं, हम 2 साल के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमको आपके यहाँ से ही सप्लाई चाहिए. सो ऑन दैट मोमेंट स्किल्ड लेबर, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव फैसिलिटीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि टैक्स ब्रेक क्या है, किसके साथ उनका ज्वाइंट वेंचर है, ओके, कॉस्ट शेयरिंग क्या है, ओपन प्राइसिंग है कि नहीं है, इन सारी चीजों को भी कंसीडर किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस, ये तो आप सब लोग अभी रिसेंटली देख रहे होंगे कि ये जो हमारा पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, हम अगर बात करें रिवर्सिबल टैरिफ की, चाइना पे कितना पड़ रहा है, इंडिया पे कहाँ जा रहा है, तो कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कितना डिसीजन लेने में मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम होती है कि अब हम कैसे एग्जीक्यूट करें. क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग रन से एक एक पैटर्न को फॉलो करते चले आए हैं. सडन पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, उनके अपने डिसीजंस आते हैं, they make their decision, they apply a reversible tariff on us and they are charging 125%. So on that moment जस्ट एज्यूम इट कि हमारा फ्लक्चुएशन कहाँ जा रहा है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ जाएगी, हम कैसे उसको मैनेज करेंगे. सो मोस्टली कंट्रीज क्या करती हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि जहां पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस कम हो. अब अगर अगेन हम चाइना की बात करें, भाई सिंगल पर्सन है, सिंगल प्रेसिडेंट है, हु इज मेकिंग द डिसीजन, हु इज टेकिंग द डिसीजन, हु हैव ऑल द अथॉरिटी. तो यहाँ पर कोई किसी भी तरीके के फोर्सेस, किसी भी तरीके का लाइक डायनेमिक सिचुएशंस नहीं है कि भैया अब कल कोई और पार्टी आएगी, वो अपना डिसीजन लेगी, फिर हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच है हमें फिर चेंज करना पड़ेगा. जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हमारी कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है. सो दैट्स वाई मोस्टली कंट्रीज व्हाट दे लुक कि पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, कौन है इस समय जो आगे एफडीआई को प्रमोट करेगा, बिजनेस को प्रमोट करेगा, या अदर फैक्टर्स जो हैं उनको प्रमोट करेगा. सो ये सारे टर्म्स आपके होते हैं, तो आप इनको पहले से कंसीडर करते हो कि हम इस टाइम पर अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या है, व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, जिससे आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे या सप्लाई चेन सिस्टम पे फर्क ना पड़े. क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल थिंग्स ओवर हियर. ओके, नाउ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट
अब अगर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम G20 की बात कर रहे हैं, कर लें, अगर हम अंकटाड की बात कर लें, तो ये जो हमारे जितने भी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने गैट बनाया, हमने WTO ने टेक ओवर कर लिया गैट को, और हमने अदर एग्रीमेंट्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। भाई पर्पस क्या था? कि उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन किसी भी कंट्री की अच्छी नहीं थी। हमारा पर्पस ये था कि हम बिजनेस को प्रमोट करें, हम अपनी इकोनॉमी को एनरिच करें। सो ऑन दैट मोमेंट हम फ्री ट्रेड की भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दी गई, फ्री ट्रेड एरिया भी डेवलप कर दिया गया। सो जितने भी आपके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, फिर चाहे हम टैरिफ रिडक्शन कर रहे हैं, फिर चाहे हम आपको लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, हम अपने सप्लाई नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगी। यूक्रेन रशिया का इशू था, पेट्रोल का इशू आ रहा था, भारत भी एक मीडिएटर बन करके कहीं ना कहीं पेट्रोल के लिए एक एक सप्लाई चेन उसने बनाई थी, एक अपना नेटवर्क को इस तरीके से उसने डिजाइन किया था। तो जो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी रिजिड हो जाए कि हम या लाइक जैसे चाइना इज वेरी रिजिड, हमें व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, हम अपना वी चैट यूज करेंगे। कोई नहीं एंटर कर पा रहे मार्क्स जुकरबर्ग। पीपल आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप इन चाइना, दे आर यूजिंग वी चैट। और वी चैट एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने लिए बना रखा है, व्हाट्सएप बार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द, मैंने अभी टैरिफ की बात करी, मैंने कोटा की बात करी, मैंने रिस्ट्रिक्शंस की बात करी। तो जितने भी आपके ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जिस भी एग्रीमेंट का हम पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो अगर हम इनके साथ कोई कोई भी डील करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टैरिफ भी कम होगा, यहाँ पर हमारे पे कोटा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। ओके, वाई? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जहाँ पे हमने एक MOU साइन किया है, हमने एक अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में इन कंट्रीज के साथ बिजनेस करने वाले हैं। ओके, सो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इफ यू टॉक अबाउट द जापानीज मार्केट, तो यू वी ऑल आर नोइंग इट कि जापान जो है वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, और वो US के किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, नहीं करना चाहता है। ओके, सो वहां पर ये वॉलेंट्री है, ये लगा हुआ है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। ओके, कि इफ यू why? Because they are very much associated with their country norms, their emotional belief, their cultural belief. That's why. So हेल्थ एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करें तो सब सब कंट्री का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, और उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब आप उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एंटर कराने जा रहे हो, आपको उनके उस बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके प्रोडक्ट को एंट्री नहीं मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट लाइक, हमें एक नॉर्मल की बात करते हैं, अगर हमें कहीं US घूमने जाना है और हमने पिकल्स ही रखे हैं, और उस पिकल में प्रिजर्वेटिव जो उनकी कंट्री में नहीं यूज हो रहा है, दे विल थ्रो इट इन द गार्बेज इमीडिएटली। आपकी सुनेंगे ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उनके यहाँ नॉर्म्स है वो, कि आप इसको नहीं ले जा सकते हो हमारी कंट्री में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एट द ग्लोबलाइजेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मतलब इट वाज अ प्रोसेस, बहुत लंबा काम होता था। अभी जो आज हम लोग इतने फास्ट वर्ड में हम क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा अभी कॉमर्स इतना फास्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाइए, तो वहां पे रॉ मटेरियल कब आ रहा है, हमारी डिपेंडेंसी थी। हम ट्रांसपोर्टर से बात करते रहते थे, भाई कब पहुंच रहा है, कब आ रहा है। बट नाउ डेज एवरीथिंग इज सो प्लान्ड बिकॉज ऑफ दिस IT थिंग, बिकॉज ऑफ दिस AI थिंग। आवर सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड। आप जैसे ही अपने माल को निकालते हो, आपकी इंफॉर्मेशन गई कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, कब तक आपके पास पहुंच जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचती रहती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अगर वो आपके ऐप के थ्रू आप किसी भी तरीके से आपको ऑर्डर दे रहे हैं,
कस्टमर के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कब हमारे डोर स्टेप पे हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी, आईटी इज कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स. ऑपरेशन मैनेजमेंट हो आपका, इंजीनियरिंग हो आपकी, मार्केटिंग हो आपका, ह्यूमन रिसोर्स हो आपका, सोशल मीडिया पोर्टल हो कि आप कैसे प्रमोट करोगे, सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं. इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी है. अगर आपकी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो उस ऑपरेटिंग साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ओके, लॉजिस्टिक की स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, और इफ यू टॉक अबाउट द सिक्स सिग्मा थिंग जिसमें हम 6 स्टेप्स को पूरा प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें एसोसिएटेड हैं. क्यों? क्योंकि हमारा आईटी सारी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर प्रोसीड करता जा रहा है. अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास स्टॉक नहीं है तो पहले बता देगा कि आप 10 दिन का स्टॉक अभी मंगा करके पहले रख लीजिए, वरना हमारा आगे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा. सो पहले ये सारी चीजें नहीं थी. नाउ वी आर एडवांस. नाउ वी हैव like things are in a very transparent way. Every second person प्रोडक्शन फ्लोर पे आपके सुपरवाइजर को पता है कि कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है. ओके. या अगर हम ब्लू विप इफेक्ट की बात करें तो लाइक वी आर नोइंग द थिंग्स कि हम कैसे इन सारी चीजों से कोप अप कर सकते हैं. हमें पहले से पता है. हम फोरकास्टिंग टूल्स को अप्लाई कर रहे हैं पहले ही कि हमें कैसे बेटर रिजल्ट मिले, हमारा कहीं पर भी लॉस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के वो हमारे प्रॉफिट को खत्म करेगा. सो इंजीनियरिंग में लॉजिस्टिक क्या नया बनाना है, क्या न्यू डेवलपमेंट्स करने हैं. अभी पहले किक स्टार्ट थी, अब सेल्फ स्टार्ट आ रही है, अब वॉइस स्टार्ट पे आपके बाइक और कार्स होंगे. तो ये क्या है, या मोबाइल पे फेस रिकॉग्निशन से ओपन हो रहा है. सो हमारे इंजीनियर्स भी, R&D टीम हमारी एक्टिवली काम करती रहती है कि मार्केट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या नया लेकर के आए कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें. आईटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सारे सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है, फिर चाहे वो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो. ओके. आपका जितना भी ई कॉमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है अपडेट रहता है, और अपडेट होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक्चुअल पोजीशनिंग पता चलती रहती है कि हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडबैक के थ्रू में पता चलता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके. सो यू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स ओपिनियन, देयर फीडबैक. ओके. या अगर हम स्वॉट एनालिसिस भी करते रहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या नया लेकर के आया है, तो अब हमें क्या चेंजेस करने हैं, उन चेंजेस को भी हमें ऑप्ट करने पड़ेंगे. एज वेल एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Because with the help of DSS, now DSS is AI based. पूरा AI बेस्ड है. वो आपको पहले से ही बताता रहता है, इन्फॉर्म करता रहता है कि अब भाई ये चेंज कर लो, ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो ऑन दैट मोमेंट वी इमीडिएटली ऑप्ट द प्लान बी, सी, डी, वॉट एवर यू आर हैविंग. मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे डिमांड की प्लानिंग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे प्रॉपर चैनल्स का मैनेजमेंट, उन सबको देखा जाता है कि किस किस पोर्टल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, हम कैसे कंज्यूमर को अवेयर करेंगे, कैसे बताएंगे कस्टमर को कि अब हम क्या नया एड ऑन करके लेके आए हैं, और कैसे कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करेंगे. HR also plays very important role because now we are so tech advanced. तो हमको ऐसे पर्सन्स चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल पर्सन्स चाहिए जो जिनको पता हो कि जो भी न्यू अपडेशन हो रहा है, दे मस्ट नो दीज ऑल थिंग्स. आप ऑब्वियसली जब भी आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आते हो, आप एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, वाया विच जितने भी आपके पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो उस न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हो. तो यहां पर निगोसिएशन मार्केटिंग के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर के लिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, हमें किस तरीके का बंदा चाहिए जो हमारे बिजनेस को और आगे ले जाए, हमारी चीजों को और स्मूथली हैंडल कर सके. जितनी भी आपके ये इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सब कोऑर्डिनेट रहती हैं. If we talk about the collaboration, if we talk about the suppliers, if we talk about the logistic, new designs, new development, marketing thing, हम अपने आप को अपडेट रखते हैं. और जब आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्मूथ रहता है तो वो फ्लो आपका पूरा मेंटेन रहता है. आप हमेशा एक बिजनेस साइकिल में ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पर ही रहेंगे. और अगर आप सपोज देख रहे हैं मार्केट में चेंज आ रहा है और आप उस चेंज को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप डिक्लाइन पे आ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
Now, it is a basically a flow of information, okay, about supplier, their corporation, as well as customers' point of view. Now, if we talk about the supplier, so उनका रोल क्या होता है कि आप प्रॉपरली टाइमली डिलीवर करें रॉ मटेरियल को। आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लग रहा है, स्टोरेज कराने में। कॉपरेशन में करते हैं, लाइक मटेरियल मैनेजमेंट का काम क्या है कि हाउ योर प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, अब बिकॉज यू आर ऑर्डरिंग द थिंग्स इन बल्क, सो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उनको अभी यहाँ पर भी पूरी तरीके से ऑटोमेशन हो चुका है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लॉरीज हैं, हमारे पास बहुत सब कुछ एआई बेस्ड है, दैट यू आर फीडिंग द डेटा ऑटोमेटिकली। आपके आपकी चीजें एग्जीक्यूट होती रहती हैं, आपके स्टोर में स्टोर हो जाएंगी। आपका आपके वेयर हाउस में कितना, वेयर हाउस मैनेजमेंट का भी एक आपका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गया है, जो आपको ऑटोमेटिकली अवेयर कराता रहता है कि इन्वेंट्री से कितना प्रोडक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे गया है, कितना अभी हमें और जरूरत पड़ेगी, कितने टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज स्टोरेज, दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर यहाँ पे कोई भी चीज मिस होती है आपके मटेरियल मैनेजमेंट साइड से या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और आपका मशीन आइडल रही, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो जितना आप प्रोड्यूस करते हो वो आइडल है, तो आपको बहुत लॉस होगा और उसको रिकवर करने में काफी टाइम लगता है। इफ वी टॉक अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, अगर एक दिन भी प्लांट ना चले ना तो उनको क्रोर्स का लॉस होता है। नाउ, कस्टमर्स की अगर हम बात करें, भाई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ओके, कब उसको डिलीवर होगा। अगर अभी हम कोई कॉमर्स पे अलग आ जाते हैं, तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट ब्लिंकिट, इफ वी टॉक अबाउट अभी फ्लिपकार्ट भी आपका 10 मिनट्स में शुरू हो गया है, दैट वी विल डिलीवर द थिंग्स इन 10 मिनट्स। जेप्टो भी आ चुका है। सो यहाँ पर कस्टमर क्या देखेगा, भाई इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, कौन हमें बेहतर दे रहा है, कुछ हमें एक्स्ट्रा दे रहा है। तो कस्टमर भी क्या करता है ना, मूडी होता है और थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है कि हमें फायदा कहाँ से मिल रहा है। सो दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे जैसे आपका कस्टमर ऑर्डर करता जाएगा, प्लेस करेगा, आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, आपके स्टॉक से जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कितनी डिमांड आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चीजें आपकी अपडेटेड रहती हैं। हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा वेयर हाउस में कि भाई हमें इतना प्रोडक्ट आगे आने वाले 2 महीने के लिए और चाहिए। सो द थिंग इज दैट कि इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन, इफ यू टॉक अबाउट दैट वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर मेकिंग, आप बाहर से सोर्स कर रहे हो, आप डोमेस्टिकली सोर्स कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर सप्लायर का कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट टाइमली नहीं मिलेगा तो वो दूसरे प्रोडक्ट पे, दूसरी सर्विसेज पे स्विच ओवर कर जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ना कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो कभी कभी आप डोमेस्टिकली भी सोर्स करते हो, और वंस वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, तो आपका मेन टारगेट होता है अब्रॉड, ओवरसीज। तो यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको लखनऊ की एक कंपनी का एग्जांपल दूं, कि यहाँ पर एक कंपनी है जिन्होंने जर्मन के साथ अपना वेंचर कर रखा है, और जानते हैं वो क्या बनाते हैं, वो नट्स बनाते हैं। जो मशीन्स में लाइक कितने इंच, कितने इंचेस के हमें बनाने हैं, 4 5 6 3 मीन्स 2 इंच का भी, 1 इंच का भी। क्यों? क्योंकि जितनी भी वो सप्लाई कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर किसी उनके प्रोडक्ट में लग रहा है, किसी मशीन को बनाने में उनको लग रहा है। तो वो जितना भी सोर्स किया जा रहा है, वो आपके लखनऊ की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, वहां से उनका वेंचर है, एंड दे आर कीप सेलिंग द थिंग्स फ्रॉम लास्ट 10 or 12 years, दे आर डूइंग इट इन। सो अब वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, वो तो डोमेस्टिकली ही अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ले रहे हैं। बट जो वेंचर हुआ है उनका रेटेक कंपनी के साथ, वो अब्रॉड के टाइम, मतलब अब्रॉड के साथ एसोसिएटेड है, तो उनको सारी पैकेजिंग, उनको अपना लॉजिस्टिक, उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ वैसे ही मैनेज करना है। नाउ अगर हमारे इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, तो रॉ मटेरियल क्या है, ओके, कंपोनेंट क्या है, फाइनल जो आपकी असेंबली हो रही है वो आप कहाँ पे करा रहे हो, फाइनल आपका जो गुड बन रहा है, फिनिश्ड गुड बन रहा है, वो कहाँ पे होगा, इन सारी चीजों को आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल आपने मंगा लिया, आपकी सारी चीजें फुलफिल हैं, बस आपको उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को इन करना है और आपका प्रोडक्ट बन गया।
सो ऑब्वियसली आप उसको कहाँ पे मंगाओगे, जहां पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। और इफ यू टॉक अबाउट कार असेंबली की बात करते हैं, फोर्ड का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, कितने सारे टूल्स वो इधर उधर से सोर्स कर रहे हैं। अब जब सारे टूल्स क्लब हो रहे हैं तो वो असेंबलिंग के लिए उसको कहाँ पे मंगा रहे हैं, दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज वट एवर द पीओ यू आर सेंडिंग, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो एक फॉरेन लोकेशन पे है, सो वो कैसे आप डिलीवरी आप तक पहुंचेगी, उसके बाद आके आप उसको फर्दर कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फुली इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं तो सारी चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं। आपका एक चीज कम हुआ तो वो पूरे पूरे सप्लाई चेन को इफेक्ट कर देगी। ओके, सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सोर्सिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपकी इंट्रा फर्म सोर्सिंग होती है और आउटसोर्सिंग होती है। इंट्रा फर्म को भी अगेन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्म में कर लेते हैं। डोमेस्टिक दैट विद इन आपकी कंपनी क्या कर रही है, प्रोक्योर कर रही है, जितने भी टूल्स कंपोनेंट्स एसेसरीज यूज हो रही हैं उनको डोमेस्टिक लेवल पे, मींस लाइक विद इन द बाउंड्रीज आपके इंडिया में ही आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल, जिसको भी हमने ऑफशोर बोला है, तो यहाँ पे कंपनी क्या प्रिक्योर करती है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किसी फॉरेन कंट्री में है एंड यू आर सोर्सिंग द थिंग्स फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज। ओके, आफ्टर दैट यू विल मेक अ गुड एंड यू विल सप्लाई टू अदर कंट्रीज। जैसे हम आंत्रपोर्ट की बात करते हैं, आंत्रपोर्ट में क्या होता है कि हम कहीं से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहीं पे है, हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया और उसके बाद हम उसको अलग 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 कंट्रीज में बेच रहे हैं। तो ये आपके इंट्रा फॉर्म सोर्सिंग का पार्ट होता है। जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी अगेन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हो जाएगा। डोमेस्टिक परचेज अरेंजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हम मेजर कंपोनेंट क्या होता है, बाय करते हैं अपनी होम कंट्री से, मीन्स जहाँ पे आपको अवेलेबल मिल रहा है, आपके आपके अम, आपके टूल्स, आपके थिंग्स, वट एवर यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट। ओके, जब हम ऑफशोर आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरनेशनली डिपेंडेंट हैं, किस पर, बाहर वालों पे। वहां से जब हमें मेन रॉ मटेरियल मिलेगा देन वी विल मेक द थिंग्स। जैसे हमारे यहाँ एक एयर जेट बनाया गया था जिसको मेड इन इंडिया पहला पहला था, तो वहां पे हमें, हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं था, हम डिपेंडेंट थे बाहर अब्रॉड कंट्रीज पे कि वहां से जब हमारे पास ये रॉ मटेरियल आ जाएगा तब हम इसको फिनिश कर पाएंगे। तो ये आपका होता है आउटसोर्सिंग, मीन्स यू आर मेकिंग द गुड्स इन योर कंट्री बट यू आर टोटली डिपेंड फॉर टूल्स, फॉर अदर एसेसरीज फ्रॉम अनदर कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नाउ कॉम्पिटेंसीज क्या है, सबसे पहली जो होती है वो पोजीशनिंग की होती है कि वट एवर स्ट्रैटेजी, वट एवर द स्ट्रक्चर यू आर यूजिंग और यू आर अप्रोचिंग फॉर ग्लोबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप अगर हम कोई इंटरनेशनल लेवल का अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, तो वहां पर जितने भी आपके एक्सपोर्टर हैं, आप अभी मुरादाबाद में चले जाइए, हमारे यहाँ बहुत क्रिसमस के डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं जो कि पूरा पूरा हमारा जो कंसाइनमेंट्स हैं वो आपके अब्रॉड में जाते हैं। और आपका ये अगस्त सितंबर में ऑर्डर आना शुरू होते हैं और नवंबर तक आपको पहुंचाना होता है मार्केट में, बल्कि नवंबर से पहले भी। तो जब हमें पता है कि वी आर मेकिंग गुड्स, वी आर मेकिंग गिविंग द सर्विसेज ऑन द इंटरनेशनल नॉर्म, सो वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अप्रोच कैसा होगा, ग्लोबल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगा। Why? Because you are supplying to various other countries. Okay, if we talk about कि आप किसी भी, अगर हम किसी भी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न की बात कर लें, अगर हम बनारस का, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारी एक क्लाइंट थी तुमोको यमाते। सो वो वहां पे एक डॉल फेस्टिवल होता है जिसमें आप बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल, मीन्स इट रिप्रेजेंट कि ये एक गुड लक चार्म है। सो उसका फैब्रिक पूरा एम्ब्रॉयडरी हो करके आपके बनारस से जाता है। सो जो वहां के कारीगर हैं, जो वहां के आर्टिजन है, जो वहां का मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, उसको पता है कि ये किस कंट्री के लिए जा रहा है। हमको पता है जापान क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो ग्लोबल ऑपरेशन है भाई, आपकी पोजीशनिंग क्या है, अगर आप लॉन्ग रन में क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप उस पोजीशन को
एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट अगर आप ग्लोबल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं करना, तो आपको उस तरीके की स्ट्रेटजीज को, उस तरीके के स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ओके, तो आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज आप मेस कर सकते हैं। सो ये पहले ही हमको अपना मेंटेन करना पड़ेगा कि जो इंटीग्रेशन हो हमारा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू में, वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, और उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करिए। एजिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे ग्लोबल कस्टमर सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी आपको मिलेगी जब आपका पोजीशनिंग सही होगा, आपका कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये मेजर फैक्टर होता है भाई। जहां पे कॉस्ट कम होगी, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑब्वियसली वांट टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। कि जहाँ पे लेबर कम है, लेबर रेट कम है, हमारे जो फ्रेट के टैरिफ्स हैं उसमें हमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो ये सब ट्रेड सरप्लस में पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, एज वेल एज कस्टम ड्यूटी ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सपोर्ट रेगुलेशन की बात करें तो एक्सपोर्ट लाइसेंसेस और लेड टाइम, साइकिल टाइम, जितना भी जो भी आपको टाइम दिया गया है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप उनको टाइमली एग्जीक्यूट करके डिलीवर करके दे रहे हो, तो हमेशा आप लॉन्ग रन मार्केट में सरवाइव करोगे और कस्टमर रिपीटेडली आपको ऑर्डर देता रहेगा। नेक्स्ट। नाउ टैक्सेस की बात करें, ये भी हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का पार्ट है, जहां पर हम कंट्रीज को कंसीडर करते हैं कि टैक्स क्राइटेरिया क्या है। ये सब भी स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एफडीआई कर रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं आपकी कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लगाने के लिए। ओके, सो इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि कितना सपोर्ट किया जा रहा है। भाई अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा देंगे, कल को कोई चेंज हो जाता है, सो ऑन दैट मोमेंट उनका कितना लॉस होगा। सो कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन, दे स्टडी द थिंग, और उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन एससीएम आपका वर्क करता है कि हाउ दे विल एग्जीक्यूट, सप्लायर कहाँ से लेंगे, या मेक इन प्रोसेस कहाँ पे रहेगा, इन सारी चीजों को एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ ये कुछ एरियाज हैं जहां पे अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल सप्लाई चेन की ओर मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको कंसीडर करना चाहिए जोग्राफिकल डिस्टेंस को, फोरकास्टिंग टूल्स को आपको देखना चाहिए कि कौन से मार्केट में कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, उनका वे ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या है, उनका कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, और एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन। इन सारी चीजों को जब आप पहले से स्टडी कर लेते हो, तो आप उसी मार्केट में एंटर करोगे कि जब आपको पता है कि हम इन सारी चीजों के साथ कोप अप कर सकते हैं, हम इन सारी चीजों को, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये सारे या तो एस्पेक्ट काम नहीं आने वाले, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या तो आपको ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और इधर अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की ओर जा रहे हैं मूव ऑन करने, तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। लेबर के स्किल कैसा है, सप्लाई मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कैसी हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसा है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है। सो उससे आप मूव ऑन कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट। एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन थिंग, तो सेल्स, प्रॉफिट, ओके, और रेवेन्यू जनरेशन, ट्रेड सरप्लस, ये सारी चीजें आपकी, करेंसी हमारे यहाँ आ रही है, इनफ्लो हो रहा है करेंसी का, तो हमारी इकोनॉमी, हमारे नेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब ग्लोबलाइजेशन होता है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो कहीं ना कहीं हम अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को मजबूत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आ रही है, हम अपनी करेंसी नहीं भेज रहे हैं, लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं बनवाने के लिए, हमारे यहाँ चीप लेबर है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया है, ओके, हमारे यहाँ 5G इंटरनेट है, आइए वी विल डू योर थिंग्स, ओके।
सो साइकिल टाइम रिड्यूस्ड हो रहा है, हमारी इफिशियंसी बढ़ी हुई है। ओके, यहाँ पे एक ओपन मार्केट है, एक बड़ा मार्केट है, यंगस्टर्स का मार्केट है, पीपल विल यूज इट। ओके, अगर हम जापान की बात करें, जापान में अभी जितना भी ओल्ड एज आपका पीपल का रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पे एक एक सर्टेन पोजीशन के बाद आकर के स्टैग्नेशन हो सकता है, बट अभी इंडिया में कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया वाले व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर ऑप्टिंग, कि वो अपने आप को इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट बना रहे हैं। हमारे बजट में भी आया है कि ग्लोबल लेवल पे अब हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ऑब्वियसली, जब भी हम कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो उसका प्रॉन्स भी होता है, कॉन्स भी होता है। ओके, मार्केट इनस्टेबल होती ही है भाई, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। उन अप्स एंड डाउन्स में आप कैसे मूव कर रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना अच्छा है, कितना रैशनल आप डिसीजन ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, समहाउ आपका क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल, कुछ विजन का प्रॉब्लम आता है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, बट अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इतना बड़ा मेजर ड्रॉबैक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these all are again the disadvantages that रिम्यूनरेशन का, या ग्लोबल मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सब हम लोग पहले क्लासेस में स्टडी भी कर चुके हैं कि हमें लॉन्ग टर्म मोड के लिए क्या ऑप्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या ऑप्ट करना है। तो वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू अ ग्लोबल मार्केट, आपको अवेयर रहना है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस सप्लायर की, अवेयरनेस कोलैबोरेशन की, अवेयरनेस रिस्क की, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप इंटरनेशनल कर रहे हो एंटर, तो यू नेवर नो कि कब आपकी मार्केट चेंज हो रही है। अब पेरिस की बात करें तो वहां पे तो हर 2 मिनट में फैशन चेंज हो रहा है। अब वहां पे जारा भी है आपका, वहां पे आपका लुई विटॉन भी है, वहां पे आपका अदर ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं, बट वो उसके साथ मूव ऑन करते हुए चल रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे, इनको आप लोग, पीपीटी आपको दी जाएगी, सो यू जस्ट चेक इट आउट कि अगर गोल्स में हम अपना कॉस्ट को रिड्यूस करने का क्राइटेरिया ऑप्ट कर रहे हैं, हम बहुत सिंपली मोड में अपने सप्लाई चेन को पुट इन कर रहे हैं विच इज एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉय एज वेल एज योर कस्टमर, तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। So students, it is all about learners, sorry, it is all about the globalization in supply chain management। और बिकॉज आप सब लोग किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हो, और हर इंडस्ट्री में अपना एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग, यू कैन एग्जीक्यूट द थिंग्स, बट यू शुड नो अबाउट द मार्केट। जिस भी मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, आपको उस मार्केट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उनका ग्लोबल मार्केट फोर्स, उनके टेक्नोलॉजिकल फोर्स, उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सारी चीजों को स्टडी करके अगर आप एंटर करते हो, देन यू कैन लाइक अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन इट। एनी क्वेश्चन, एनीबडी हैव? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके अंकित, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन वाइंड अप द सेशन। Yes, ma'am, we can find. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.